Hello and welcome back to Learn with Reena. This is your tutor of English, Tanya. And in this lecture, we are going to cover how to greet somebody when we meet somebody for the first time. जब हम किसी को hello कर रहे होते हैं, and how to say them a goodbye. So let us dive into the topic. In order to make our communications better, we often meet people and we often say them with cordial relationships, and to maintain cordial relationships we greet others every time we meet them. So in English language there also exist many ways. जब हमने किसी को बाय करना होता है, यानी कि हमने किसी को बाय बोलना है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं. So we are going to learn those in this lecture, how to greet people and how to say goodbye to people in English. So number one is hey, hello. You could wish somebody hey, hello, which is simply saying hello every time we meet someone. So hello Arav, we are just greeting hello. The next way could be good morning, good afternoon or good evening. The basic, this is according to the time. अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग कर दो, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग. और अगर बाय बाय कर रहे हो किसी को, यू कुड ऑल्सो से गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉन्ग टाइम नो सी. जब आप किसी को बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, सो यू कुड से लॉन्ग टाइम नो सी, यानी कि तुम बहुत दिनों से मिले ही नहीं हो. Often said when we are meeting someone after a long time. Hey Anu, long time no see. Next is greetings of the day. Greetings of the day आप तब use करोगे, which is often used in official mails. जब आप officially किसी को formally कोई letter लिख रहे हैं, mail लिख रहे हैं, तो you could start it with greetings of the day, which means hello. ठीक है, greetings of the day sir. नेक्स्ट इज व्हाट्स न्यू. जब जनरली इनफॉर्मली आप किसी से पूछ रहे हो कि कैसा चल रहा है सब, व्हाट्स न्यू, क्या नया हो रहा है, सो यू कुड से व्हाट्स न्यू, व्हिच इज आस्किंग अबाउट जनरल लाइफ अपडेट्स. हे व्हाट्स न्यू विद यू श्रुति. नेक्स्ट इज हाउ इज इट गोइंग. हाउ इज इट गोइंग वी आस्क जब सब कैसा चल रहा है. यू आर मीटिंग आफ्टर समबडी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और जनरली जब आपने किसी से पूछना है कि सब कैसा चल रहा है, सो यू कुड से हाउ इज इट गोइंग. To ask about life or generally anything, any topic, any specific topic. It is also used when we are asking about a particular issue. किसी specific issue के बारे में आप बात कर रहे हो, और which is familiar to both persons. Hey Bhavit, how are you? What's going on? Or you could say hey there. Hey there आप normally किसी को text में भी लिख सकते हो, and when you are meeting them in person, जब आप किसी से मिल रहे हो तब भी लिख सकते हो hi there, which we are using to greet someone at another side of the call. Hi there. Next is howdy. Howdy is basically an informal meeting. जब आप किसी से पूछते हो hello कैसे हो, तो इन दोनों का मिक्सचर हो गया howdy. Howdy my boy. नेक्स्ट इज हाउ आर यू फीलिंग टुडे. जब आपने किसी से पूछना है कि आज तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम आज कैसा फील कर रहे हो, यू कुड से हाउ आर यू फीलिंग टुडे, टू आस्क समवन ओवरऑल वेल बीइंग. मुस्कान, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. नेक्स्ट इज व्हाट्स गोइंग ऑन. अगेन जब आपने किसी से पूछना है कि सब कैसा चल रहा है, सो यू कुड से व्हाट्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट इज हाउ आर यू, तुम कैसे हो. यू आर आस्किंग अबाउट द जनरल वेल बीइंग अबाउट अ पर्सन. नेक्स्ट इज हाउ हैव यू बीन अप टू, तुम अभी तक कैसे चल रहे हो, अभी तक सब कैसा चल रहा था. So जब आपने ये पूछना है तो you will say how you have been up to, how have you been up to, which is asking a person how the person have been busy with. तुम कहाँ busy चल रहे थे अब तक, how have you been. तो इस तरह से पूछ सकते हो. Next is hey what's up, which means hello कैसे हो, कैसे चल रहा है सब. Someone asking about general things. Next is nice to meet you, nice to see you, which means अच्छा लगा तुमसे मिलके. जब कोई मीटिंग कर लेते हो, आप किसी से मिल लेते हो, जा रहे होते हो, so you could say it was nice to meet you or it was nice to see you. See you next time. ठीक है. हे प्रियंका, nice to see you. Next is how have you been. तुम अभी तक कैसे चल रहे थे, कैसे थी तुम्हारी तबीयत कैसी थी, तब भी आप पूछ सकते हो how have you been. Now those were the ways जब आपने किसी से किसी का हालचाल पूछना है, किसी को hello बोलना है. Now we'll say how to say a goodbye to somebody. Number one, very easy, which was bye, bye bye बोल सकते हो आप. Next is see you next time, फिर कभी मिलेंगे, next time मिलते हैं तुम्हें. Okay dear, see you next time. Next is see you later or see ya later. You could use both informal and informal, maximum in informal. See ya later जो है वो आप informal में use करोगे. See you later you could use informal also, but that too you have to see, not to your boss obviously. ठीक है. Hey Jane, it was a good time. See you later. Next is see ya, which is very informal. See ya आप अपने friends को बोल सकते हो. Catch you later, obviously with your friends. This is informal. Catch you later मतलब हम फिर कभी मिलते हैं. Okay, bye मुकुल. Catch you later. नेक्स्ट इज हैव अ गुड डे. जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हो जाते हुए कि मैं आशा करता हूं तुम्हारा दिन अच्छा जाए, सो यू कुड से हैव अ गुड डे. बाय बाय डैडी, हैव अ गुड डे.
नेक्स्ट इज हैव अ गुड वन, ये आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हो कि हैव अ गुड वन, ये आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो हैव अ गुड वन, यानी कि मैं आशा करता हूँ तुम्हारा बर्थडे अच्छा जाए। नेक्स्ट इज टेक इट इजी और टेक केयर, विच मीन्स तुम अपना ध्यान रखना। गुड बाय जेन, टेक इट इजी और टेक केयर, विच मीन्स अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट इज टूडलो और टूडल्स, टूडल्स मतलब बाय, ठीक है, टूडल्स एवरीवन मतलब बाय एवरीवन। नेक्स्ट इज बाय ऑफन, विच इज यूज्ड विद किड्स ओनली, बाय आरव। और नेक्स्ट इज अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हैं जब आप किसी को बोल रहे हो कि चलो फिर कभी मिलेंगे, तो वो फिर कभी का क्या बोल सकते हो आप, विच इज अंटिल नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज अ क्विक कॉन्वर्सेशन फॉर प्रैक्टिस जो आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है मॉम और सन की। मॉम कहती है हेलो सन, हाउ आर यू डूइंग? सन बोलता है आई एम डूइंग वेल, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसी हो मॉम? द सन रिप्लाइज, well it was pretty much hectic day today and even now I have got on my plate, मैंने अभी मुझे खाना मिला है। oh dear you take rest in your room, I'll get you something to eat, what I have got something to eat मतलब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। so mom replies, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम अभी अपने रूम में चलो। sure mom, see you around, see you around मतलब कि चलो वहीं मिलते हैं। so mom says see ya मतलब ठीक है वहीं मिलते हैं। and the next conversation is between two cousins who are Rahul and Sara, they are meeting at a party after a long time। so Rahul says hey Sara, लॉन्ग टाइम नो सी, वो सारा को ग्रीट करता है हे, एंड लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत टाइम से तुम दिखी नहीं हो, मिली नहीं हो। सारा रिप्लाइज हे राहुल, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे थे? So Rahul replies, I have been busy with career and projects. How are you doing? What's happening? तुम कैसे हो और आजकल क्या चल रहा है? Sarah replies, I am doing well. Just have been busy with office and home lately. मैं ऑफिस और होम में बिजी चल रही थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। Lately मतलब आजकल चल रही थी। So Rahul replies, Okay, come let's enjoy the party. And yes, sure, they enjoy. After the party gets over, Rahul says, Well, Sarah, it was a good time. It was nice meeting you. Nice to see you. Sarah replies, Nice to meet you too. मुझे भी मिलकर काफी अच्छा लगा। टूडल्स राहुल, टूडल्स हमने देखा था, टूडल्स मतलब बाय। एंड राहुल रिप्लाइज यस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर या फिर टेक इट इजी, विच मीन्स ठीक है अपना ध्यान रखना, बाय। सो दिस वाज ऑल कि आप किस तरह से अच्छे अच्छे तरीकों से किसी से मिल सकते हो, इंग्लिश में अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो और किसी से बात कर सकते हो। सो बाय दिस आई कॉल इट अ डे एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।